students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are dealing with the chapter units and measurement. In the previous video, we have studied about the dimensional analysis and its applications. Now here we have a new topic that is called as the errors in the measurements. Whenever we are measuring any physical quantity, then we are not sure that we will get the exact reading or not. So here we have a term called as the error. So first of all, what an error is. Okay, suppose if I have this pen and in actual its length is suppose 15 centimeter. Now when I am measuring it, then I might get its reading as 15.1 centimeter, or I can get it as 14.9 centimeter. So what its actual length is, that is called as its true value or the actual value, जो वाकई में इसकी value है. And whatever I am measuring it, that is called as its measured value. So the difference between the true value or actual value and the measured value, that is called as the error. ऐसे तो error निकलेगा ना कि अगर मैं इसकी जो actual value 15 centimeter, but if I am calculating it as 15.1, मतलब यहाँ पर जो error है वो कितना हो गया 0.1. कैसे calculate किया, जो दो values है उसको subtract किया, I got the error. So what this error is, the difference in the true value, that is the actual value, and the measured value of the quantity, that is called as the error. Okay, now we have different kinds of error. Here in this lecture we will study about the theoretical errors. मतलब यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा calculation required नहीं होता है. Okay, so the first one is the systematic errors. So here we have systematic error. है तो error, पर फिर भी क्या है, systematic है. Okay, so what these systematic errors are? These errors tend to be in one direction, either positive or negative. अब यहाँ पर direction से क्या मतलब है? Direction से ये मतलब है कि if I am measuring something, again I have this example कि अगर मैं इसकी length को measure करता हूँ, suppose in the first attempt I am getting the reading to be 15.1 centimeter. In the next reading I am getting its reading to be 15.2 centimeter. In the next I am getting it to be 15.3. मतलब हर बार जो रीडिंग है मुझे एक ही डायरेक्शन में मिल रही है. मतलब जब मैं एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालूंगा तब मुझे हमेशा क्या आएगा, प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3. सो वी कैन से दैट एरर इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. यहीं पर अगर मैं इसकी मेजर्ड जो वैल्यू है, इफ आई एम गेटिंग इट टू बी 14.9, 14.8, again 14.9, then I am getting it to be minus 0.1, minus 0.2, minus 0.1. So in that case, that will be negative value. मतलब यहाँ पर अगर हर बार वो जो वैल्यू है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, then we say that error to be systematic error. Next point is the cause of systematic error is known to us, therefore can be minimized. मतलब यहाँ पर जो कारण है कि किस वजह से ये एरर अपने पास निकल कर आ रहा है, वो कारण हमें पता होता है, इसलिए यहाँ पर इन एरर्स को हम इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स वी हैव. द फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. एज द नेम सजेस्ट हियर, इंस्ट्रूमेंटल मतलब यहाँ पर ये जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है. जैसा कि हमने अभी देखा है कि हियर द error is known to us, that is the reason of the error is known to us, therefore can be minimized. मतलब अगर हमें पता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो भी वो मेजर कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ही अगर कुछ प्रॉब्लम है और अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम को अगर रेक्टिफाई कर दें, देन वी कैन से उस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. नाउ ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या क्या होता है इसमें, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन. कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिजाइन है उस इंस्ट्रूमेंट की वही कुछ अलग सी होती है, जिसकी वजह से वहां पर हमें एरर आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी हमारे पास कोई स्केल होती है, स्केल में आपने देखा होगा कि स्केल की अगर एज इफ इट इज नॉट शार्प, अगर वहां से वो कर्व्ड होती है, तो लास्ट की जो रीडिंग है 14.5 से लेकर 15 तक वो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं हमारे पास उसकी वजह से एरर आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट डिजाइन. ओके, द नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज फॉल्ट ऑफ द ऑपरेटर. मतलब अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, बट आपको वो मेजरमेंट करना नहीं आता, या इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मेथड हाउ टू कैलकुलेट इट, देन यू कैन गेट द एरर, एंड दैट एरर विल बी अ सिस्टमैटिक एरर. सो इट इज ड्यू टू द मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. द थर्ड वन इज द लोडिंग इफेक्ट. लोडिंग इफेक्ट मतलब कि आपने जो मेजर्ड किया है किसी भी वैल्यू को, अगर उसके ऊपर आपने एक लोड दिया है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग लाइक वोल्टेज, तो जब भी आप वोल्टेज मेजरमेंट करोगे यू आर यूजिंग वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर के साथ जब भी आप कोई
वोल्टेज की वैल्यू मेजर करते हो, सपोज यू आर कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, लेकिन वहीं पर जब आप सेकंड टाइम्स की जब वैल्यू मेजर करोगे तो यू आर टेकिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस. सो इन दैट केस बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वैल्यू लोडिंग इफेक्ट, वहां पर क्या होता है कि एक इफेक्ट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लोडिंग व्हेन यू हैव यूज्ड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट भी है जिसकी वजह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आ जाते हैं. उस लोडिंग की वजह से भी हमारे पास जो है सिस्टमैटिक एरर्स आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लाइंग जीरो करेक्शन. मतलब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, या फिर यू कैन से वी शुड हैव गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आल्सो अप्लाइंग जीरो करेक्शन. जीरो करेक्शन मतलब क्या है कि कभी भी आप कोई भी डिवाइस से जब कोई भी मेजरमेंट करते हो तो वहां पर क्या है, स्टार्टिंग में हमको उसका जीरो करेक्शन देख लेना चाहिए कि स्टार्टिंग में उसका जो पॉइंटर है वो जीरो पे है या नहीं है. देन ओनली दैट इंस्ट्रूमेंट विल गिव अस द एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग. Now, the next one is the environmental error. Now, what this environmental error is, as the name suggests, this environmental error is due to the environment or the physical conditions that are around you wherever you are measuring the physical quantity. So, what these errors are? These are due to external conditions. Now, what those external conditions are? They are due to temperature. कहीं पर हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं जहां पर हमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी. देन वी विल गेट सम एरर्स एंड देयर आर आल्सो द सिस्टमैटिक एरर्स. वी मे हैव सम फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, like humidity, like vibrations, etc. If you are doing some experiment where vibrations are not required, then you will get systematic errors in that condition. Now the next one is the observational error. Observational error, you can say it is because of the observations. मतलब जो भी वहां पर ऑब्जर्वर उस प्रैक्टिकल को कर रहा है या उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर की वजह से भी वहां पर एरर्स आ सकते हैं. इट इज ड्यू टू द रॉ ऑब्जर्वेशन ऑफ रीडिंग. मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी ऑब्जर्वर है वो अगर वहां पर जो रीडिंग है उसको अगर गलत तरीके से नोट डाउन करे, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी आर मेजरिंग द करंट, द वोल्टेज और द डिटेक्टिंग द करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर क्या है, यू आर ऑलवेज यूजिंग सम पॉइंटर्स. तो अगर आप उस पॉइंटर को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले सकते तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स आएगा, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि पीछे वहां पर एक मिरर लगा हुआ होता है. तो वहां पर आपको क्या देखना होता है कि जो इमेज है और जो एग्जैक्ट पॉइंटर है दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने चाहिए. अगर वो कोइंसाइड नहीं करते देन यू विल गेट द error, then that will be the observational error. One more thing is there in observational error, that is the least count error. So what this least count is? Least count is the smallest value that is measured by any device or any instrument. तो अगर आप उस least count को exact measure नहीं कर पाओगे तो वहां पर आपकी जो भी reading है वो सही नहीं आएगी, and then you will get the observational error, and that observational error comes under the systematic error. The next type of error is the random errors. इससे पहले जो हमने देखा क्या था, सिस्टमैटिक था, इन विच द एरर्स आइदर कैन बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन. बट एज द नेम सजेस्ट हियर, दीज आर रैंडम एरर्स. इट मीन्स दीज एरर्स ऑकर्स इरेगुलरली. मतलब कभी भी ये पॉजिटिव हो सकते हैं और कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं. जब भी आप मेजर करोगे ये हर बार पॉजिटिव नहीं रहेंगे. अगर आप सपोज इसका मेजरमेंट करते हो, इफ वन टाइम यू आर गेटिंग इट्स रीडिंग टू बी 15.1 सेंटीमीटर और नेक्स्ट टाइम में जब इसकी रीडिंग आप नोट करोगे तो यू विल सी इट टू बी 14.9. मीन्स at one time it is positive and on the other side it will be negative. So here sometimes they can be positive and sometimes they can be negative. Such errors are called as random errors. The next one is they are also called as chance errors. मतलब ये chance error क्यों होते हैं? Because they are coming in the system by the chance. We don't want these errors to be in the system. Now these errors remains even after the removal of systematic errors. मतलब systematic errors हम remove कर सकते हैं. कैसे? By adjusting the device. But here उनके remove करने के बाद भी अगर ये रहते हैं वहां पर, hence such types of errors are called as residual error. इसीलिए हमने क्या बोला इनको? Residual error बोला, क्योंकि ये उस सिस्टम के अंदर रहेंगे ही. Okay, so these can be minimized by repeatedly taking the readings. मतलब इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आप रीडिंग्स लोगे और उनके बाद उनका एवरेज निकालोगे, मतलब उन रैंडम एरर्स को हम वहां पर मिनिमाइज कर सकते हैं. दिस इज द ओनली मेथड बाय विच वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर्स. Now the next error is the gross error. Now what these gross errors are? These errors are due to the human mistake.
Now human mistake किस तरह से? Due to the carelessness of the observer. Means if the observer is careless, मतलब जब भी वो रीडिंग को नोट डाउन करता है, sometimes if they want to write it to be 38, but if he writes it to be 58, then that is the carelessness of the observer. He takes wrong readings like I have explained you, and the reading the instrument without setting it properly. मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से सेट नहीं किया है और उससे पहले ही हम वहां पर रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं. That is also kind of gross errors. So these are all about the errors which we will encounter while doing the experiment.